Good morning, students. Earlier we have completed our first part, and from today we will begin with the second part, tracking the panther of Nagarhole from the lesson Into the Wild. Let us begin. Shaz Jung is a wildlife photographer, cinematographer, big cat tracker, man-animal conflict resolution seeker, and lodge owner, all rolled into one. What he says here? Here is a story. Here is the person that we will learn about. His name is Shaz Jung. Okay. Now here, Shaz Jung, who he is a wildlife photographer. He is a professional wildlife photographer as well as cinematographer. Means here he is actually a cameraman who shoots the photo as well as takes the video. Big cat tracker. Big cat, you know, the tiger. Again, the other animals related to that category, the leopard, panther, all these. Man-animal conflict resolution, such type of organizations that he is related with also. Again, here he is a lodge owner also. All those roles are played by only one person. He is Shaz Jung. When he is away from the jungles of Nagarhole, actually he is related with the jungle of Nagarhole. It is the main place of interest for him, and when he is away from jungles of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park. The jungles of Nagarhole, they are known as the Rajiv Gandhi National Park, and there he is doing the work. Actually, he is there as a tourist guide, and again many works that he used to do there. But when he is away from Nagarhole, he has some other work to do, and they are given here. He is a leading photography safaris in Africa. He would be in Africa, and there he would lead the photography safaris. He would be with the tourists who are photographing there. He would guide them. Again, some of the times he would showcase. Showcase means here, that is display. Okay, so he would display. What he was display? His work. Actually, he is a photographer, and so the beautiful pictures, these are taken by Shaz Jung. They would have their display at the art galleries. कुछ art galleries होती है students, और उन art galleries में वहाँ पे picture display के लिए रखे जाते हैं. और उस जो भी जिस तरह का लोगों का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस तरह के लोग आके ऐसे गैलरीज को एंजॉय करते हैं. तो अलग अलग टाइप के पिक्चर्स वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे जो है अलग अलग टॉपिक के ऊपर के, वो वहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं. एक पर्टिकुलर उसका टाइम होता है, उस टाइम के दौरान वो वहाँ पे पिक्चर्स लगाए जाते हैं. तो यहाँ पे ही यूज्ड टू डिस्प्ले हिज वर्क एट द आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज़. जो भी हमारी कैपिटल सिटीज़ है ना, तो वहाँ पे वो एक्चुअली अपने वर्क को डिस्प्ले करते हैं. एंड अगेन सम मोर वर्क, दैट इज स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस. यहाँ पे और एक तीसरा काम करते हैं वो, दैट इज टू निगोशिएट, टू टॉक, टू कन्विंस द पीपल, अगेन टू चेंज देयर माइंड्स. किसके बारे में? दैट इज हु आर इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस. हमारे फॉरेस्ट ही हमारी रिचनेस है हमारे प्लैनेट के लिए, और इनको कंजर्व करने के लिए जो कोई भी इंटरेस्टेड है उनसे वो बातचीत करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उनका सपोर्ट वो मिला पाने की कोशिश करते हैं वो. सो ऑल दोज थिंग्स दे आर डन बाय शाज जंग. ओके, आगे बढ़ते अभी. Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of felines. यहाँ पे
शॉज रिकॉल करते, वो याद करते हैं एकदम ग्रेट क्लैरिटी से, वो बोलते हैं कि मुझे आज भी वो याद है किस्सा, द इंसिडेंट, ठीक है ना, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज आंसरिंग द कॉल ऑफ द फेलाइन्स. फेलाइन्स मीन्स हियर दैट इज बिलोंग टू कैट फैमिली. ओवर अ करियर डेडिकेटेड टू फिनांस. एक्चुअली उनका करियर जो है वो फिनांस के लिए डेडिकेटेड था, यानी वो जो भी उनकी पढ़ाई हुई थी और उसके पढ़ाई के बाद में उन्होंने अपना करियर चालू किया था फिनांशियल डिपार्टमेंट में, यानी कुछ तो भी ऐसे एक फिनांस का कोई तो भी वो जॉब कर रहे थे. सो हिज करियर वाज डेडिकेटेड टू फिनांस. और तभी उनको फेलाइन्स का कॉल आया, यानी जो कैट है, बिग कैट है, तो उनको जैसे कॉल आया और उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड भी किया. वो बताते हैं इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट. तो बोले वो सनसेट का समय था, इवनिंग हो चुकी थी. वी वेयर एट अ जंक्शन, और वो एक जंक्शन पे खड़े थे. द डियर वेयर कॉलिंग, और उसी दरम्यान उनको डियर की द कॉल जो होता है वो कॉल उनको सुनाई दे रहा था. ही सेज वी वेंट अराउंड टू ब्लाइंड टर्न, और वो एक ब्लाइंड टर्न जो है, एक जहाँ पे आगे एक तरह से एकदम टर्न है, तो वहाँ से वो जाते हैं वहाँ तक वो, और वो बोलते हैं आगे एंड अप अहेड ऑन द पाथ वॉज दिस ओल्ड लेपर्ड. और वहाँ पे उनको ही हैपन टू सी बिफोर देम द ओल्ड लेपर्ड. ओके, एंड you could tell he was past his prime. The leopard who was looking old, he had lost his prime. Means to lose one's prime एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है to lose one's glory. That old cat, that is actually belonging to the cat family, that leopard had become old. It had grown old, and so that old leopard, it could be witnessed with some of the things. These are, you could tell he was past his prime. The jungle had taken a toll on him. Means he had lost his glory and the jungle has turned against him. He only had 3 canines, means the sharp teeth in the mouth of the leopard, they had remained only 3, means the 4 canines are there. Out of 4, 1 had fallen, might be because of some struggle or again some of the other conflict that he had with the other animals. His eyes were sagging. Sagging का meaning क्या होता है? They are getting weak. Means here his eyes, they were looking dull. Okay, there was not that type of sharpness or again that type of the bravery, or again here we can say the beauty, and again the activeness of his eyes, it was also lost. Close to this leopard was another very young good looking male who was soon to become into his prime. Means there was another leopard standing just against him, and he was looking very young looking male, and certainly he is going to achieve its young stage. It was like looking at the past and the present. Okay, so he was looking at the past and the present. It was like looking at the past and the present. What does it mean? That it was looking at the past and the present. What does it mean? It means that at one end there is the past, means the old leopard, and on the other side there is the present, means the young leopard, which is looking very young, good looking male. Okay, so at one side there is the past and on the other side there is the present.
इट वॉज क्लियर दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट। और इसका मतलब ये था कि दोनों के बीच में जल्द ही फाइट होने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली द सन वॉज सेटिंग एंड वी हैड टू लिव। लेकिन राइटर के लिए ये एक शाज जंग के लिए ये एक अनफॉर्चुनेट थिंग थी कि इट वॉज द इवनिंग टाइम एंड सो द सन वॉज सेटिंग एंड सो दे हैड टू लीव द प्लेस। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट बैक टू द स्पॉट। और दूसरी मॉर्निंग वो उसी जगह पर जाकर खड़े होते हैं जहाँ पे और प्रीवियस डे इवनिंग को थे। तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड। वो यंग लेपर्ड जो था वो यंग लेपर्ड वहाँ पे खड़ा था और ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम अ गैश अक्रॉस हिज फेस। ओके, गैश दैट इज अ डीप कट, अ वुंड, यानी उसके चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर वहाँ पे एक गहरा घाव हुआ था, गैश, और वहाँ से ब्लड ड्रिप कर रहा था, ब्लड नीचे टपक रहा था। ही सैट देयर लाइक ही वॉज किंग ऑफ द जंगल। और वहाँ पे वो इस तरह से बैठा हुआ था एज इफ ही वॉज किंग ऑफ द जंगल, जैसे किंग हो ऐसा वो वहाँ पे बैठा हुआ था। आई न्यू राइट देन दैट ही हैड टेकन ओवर। और उन्हें तभी पता चल गया कि हियर दैट यंग लेपर्ड हैड किल्ड द ओल्ड लेपर्ड, उसे उसने मार दिया है। ओके, दैट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी। तो वहाँ पे एक नई जर्नी चालू हो रही थी उस यंग लेपर्ड के लिए और राइटर के लिए भी। वाई इट इज सेड दैट इट इज़ अ न्यू जर्नी फॉर द राइटर आल्सो, क्यों ऐसा उन्होंने कहा है यहाँ पे, एंड फॉर मी। ओके, क्यों कहा है उन्होंने ऐसा? हियर स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द राइटर पर्टिकुलरली शाहजंग, okay, Shahjang is not that much interested, he is not interested that much into the wildlife photography, or again here he was not attracted about, or again was not known about the conflict of man and wild animal, or again here the details of the wildlife that he was not known to. But when he happened to witness that incident, when he had seen the conflict of old leopard and the young leopard, and again here the kingly behavior of that young leopard, all those things they have just impressed him, and he started to follow the pursuit, means here that is to follow the interest, and he started developing interest into wildlife. Okay, then अभी पेज नंबर 16 निकालिए आप। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ्स ऑफ दैट विक्टर, फोटोग्राफ्स ऑफ दैट लेपर्ड, द विक्टर स्कारफेस, उन्होंने उसका नामकरण किया। ही नेम्ड हिम एज स्कारफेस। क्या नाम रखा उन्होंने उसका? स्कारफेस। ओके, Scarface, as Shahs named him, not only made Shahs famous among India's wildlife community, but also led to Shah's enviable reputation as a chronicler of the wild. तो बोले उन्होंने जो फोटोग्राफ्स निकाले इस स्कारफेस के, जो यंग लेपर्ड जो था जिसके उन्होंने फ़ोटो निकाले, तो उसके उन्होंने कई सालों तक, कई महीनों तक उसको जैसे फॉलो किए उन्होंने, और स्कारफेस को उन्होंने नाम भी दिया, यानी उस लेपर्ड को नाम दिया स्कारफेस करके। और उनके जो अलग अलग फ़ोटोज़ उन्होंने निकाले, तो ऑल दोज फोटोज़ रियली दे मेड शाज फेमस अमॉन्ग इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी। उनसे उनको पॉपुलैरिटी मिली, साथ ही में लेड टू शाज इनवाइबल रेप्यूटेशन, एक तरह से इनवाइबल यानी जिससे जेलसी हो, दूसरे लोगों को
जेलस फील करे, ऐसे वो एनविएबल, रेप्यूटेशन एज अ क्रोनिकलर ऑफ द वाइल्ड. क्रोनिकलर मीन्स हियर वन हु एनलिस्ट ऑल द डिटेल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. ओके, तो एक जिसको हम हिस्टोरियन कह सकते हैं, हिस्टोरियन ऑफ द वाइल्ड. ओके, देन through my journey of photographing Scarface, I have discovered other leopards. तो उन्होंने जैसे फोटोग्राफी के लिए स्कारफेस को फॉलो किया और उसको फॉलो करते करते उनको कई दूसरी चीज़ों का भी पता चला. कौन सी चीज़ों का? डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स. ओके, अगेन हिज मेट्स, उसके साथी कौन है? डिस्कवर्ड हिज एनिमीज, उसके एनिमीज कौन है वो भी उनको पता चले. दीज आर द टाइगर्स. ओके, आई ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटैगनिस्ट ऑफ माई वर्क, साया. नाउ साया ये करंट प्रोटैगनिस्ट है, यानी उनका अभी फिलहाल का राइट नाउ ही इज द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर हिम. और उनका भी जो वर्क चल रहा है वो साया के ऊपर चल रहा है. अभी ये साया कौन है? वाइल ट्रैकिंग स्कारफेस. दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक पैंथर. तो ये साया जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लैक पैंथर है. ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, और उसका नाम क्या है? दैट इज साया. ओके, वाइल ट्रैकिंग स्कारफेस. तो स्कारफेस को ट्रैक करते करते उनको एक ब्लैक पैंथर भी उनको दिखने में आया और उसका उन्होंने नाम रखा साया. और उस साया के ऊपर ही, इस ब्लैक पैंथर के ऊपर उनका भी वर्क चल रहा है, इसलिए उनको वो करंट प्रोटैगनिस्ट कहते हैं. सेंट्रल फिगर, द फिगर ऑफ इंटरेस्ट.